this question turned out to be pretty much interesting, so I thought I should make a video on this. Okay, so in this question it is said that the consider this Atwood machine. The larger mass is stopped at a moment 2 seconds after the system is set into motion. Find the time elapsed before the string is tight again. So there is, you have to understand few things in this. So I am drawing the Atwood's machine again. There is this block and there is another block. This is m1 and this is m2. So we got that the acceleration is m1 minus m2 divided by m1 plus m2 times of g. So this turned out to be because m2 was 300. Let's take, because I have written m1 minus m2, right? So that's why I have taken m2 as 300 and m1 as 600, though question writes m1 as 300 and m2 as 600. Just because I have taken here m1 minus m2, of course, so m1 will go down with a acceleration and m2 will go up with same a acceleration, and this will turn out to be 3g by 9, which will become, acceleration will become g by 3. Okay, so with this acceleration 300 wala block is moving up and the same acceleration 600 block is going down. Now in the second part, question is saying the larger mass m is stopped for a moment. Okay, I am stopping this larger mass for a moment 2 seconds after the system is set into motion. So this question means after 2 seconds the system is set into motion, the larger mass has been stopped for a moment. After 2 seconds of setting motion, m1 block is at rest for a moment. Now so t seconds 2 seconds later, t equals to 2 seconds later, the m1 block and m2 block will have a velocity. Okay, this will have a downward acceleration g by 3 and this will have a vertical acceleration g by 3. So 2 seconds later, if we consider the initial velocities of both the block as 0, so 2 seconds later m1 block will have a velocity v1 will be equal to 2g by 3 meter per second, and m2 block similarly will have v2 same 2g by 3 meter per second. Now when after 2 seconds, just a moment after stopping m2, what will happen? Moment after stopping m1, the consider this m1 block, its velocity will become 0, and consider this block, this is m1 and this is m2. Now consider this block m2, it will still have an acceleration 2g by 3 in the vertical direction. Okay, it will still have the acceleration velocity in the vertical direction, this much, but velocity of v1 will become 0 because it has been brought momentarily at rest. Okay, now when this has been block, m1 block has been brought to rest, जब इसको m1 को हमने रेस्ट पे लेकर आ गए, तो हम ये नोटिस करेंगे कि जो ये स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग में टेंशन चला जाएगा. क्यों? क्योंकि इसको रेस्ट पे लेकर आ गए. इन दोनों के बीच में जो कंस्ट्रेंट रिलेशन था वो इसीलिए आ रहा था क्योंकि यहाँ पे टेंशन था. ठीक है, अब टेंशन को जब इस m1 ब्लॉक को मैं रेस्ट पे लेकर आ जा रहा हूँ, तब मैं क्या कर रहा हूँ, इस टेंशन को हटा दे रहा हूँ बेसिकली. तो जब ये टेंशन हट जाएगा तो दोनों ब्लॉक टेंशन हट गया है, तो फिर दोनों ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ही आएगा. ठीक है, क्योंकि अब इस पे टेंशन नहीं लग रहा है. मोमेंट आफ्टर जैसे ही मैंने m1 ब्लॉक को स्टॉप किया
तो मेरा वो उसकी वेलोसिटी खुद की ज़ीरो हो गई और उसकी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो जाती है। ठीक है, उसकी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो जाती है जी की। बट M2 वाला ब्लॉक आपका V2 वेलोसिटी के साथ अभी भी कंटिन्यू करेगा, बट उसमें भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो जाएगी जी। तो इसमें फिजिक्स क्या लगता है वो समझो। अब ये होगा कि M1 ब्लॉक, बिकॉज उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है बट उसके डाउनवर्ड जी डायरेक्शन पे एक्सेलरेशन है, तो वो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन वेलोसिटी गेन करता रहेगा, वेलोसिटी गेन करता रहेगा। और जो M2 ब्लॉक है उसकी इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड के डायरेक्शन पे है, और जो इनिशियल एक्सेलरेशन अब है क्योंकि टेंशन गायब हो गया है तो एक्सेलरेशन इसका डाउनवर्ड की डायरेक्शन है, तो ये वेलोसिटी अपवर्ड की डायरेक्शन में लूज करता रहेगा। ठीक है, ये अपवर्ड की डायरेक्शन में वेलोसिटी लूज करता रहेगा और M1 डाउनवर्ड की डायरेक्शन में वेलोसिटी गेन करता रहेगा। तो आप अगर ये पता कर लो कि इसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो कब हो रही है, अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 2g/3 है माइनस gt अगर मैं करूँ तो मुझे इसकी t इक्वल्स टू 2/3 पे 2/3 सेकेंड पे मुझे ये पता चल जा रहा है कि ये M2 ब्लॉक अपनी वेलोसिटी लूज कर जाएगा, कंप्लीटली लूज कर जाएगा। तो इतने टाइम बाद ये ब्लॉक जो है अपनी वेलोसिटी गेन कर जाएगा। कितनी गेन करेगा? वो सेम 2g/3 मीटर पर सेकेंड तक गेन करेगा। ठीक है, 2g/3 मीटर पर सेकेंड तक गेन करेगा। तो अब समझो यहाँ पे क्या हो रहा है। वापस से हम ये डायग्राम पे आते हैं। तो ये ब्लॉक M1 था जिसको हम रेस्ट पे लेकर आ गए, ये ब्लॉक M2 है, ये M1 है और ये M2 है। तो अब हो ये रहा है कि इसको मैं अब रेस्ट पे लेकर आ गया हूँ, इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जी थी, ये M1 को, हाँ M1 को रेस्ट पे लेकर आ गया हूँ, इस पे डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जी थी, इस पे रेस्ट पे मोमेंट के बाद इस पे 2g/3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी थी। तो अब ये ऊपर की डायरेक्शन पे तो मूव कर रहा था। t इक्वल्स टू 2/3 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी यहाँ पे ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, और ये जितने टाइम पे ऊपर जाता रहेगा ये यहाँ पे स्लैकनेस आते जाएगा, उतने ही टाइम पे ये नीचे मूव करता गया और ये जब इसकी वेलोसिटी 2g/3 हो गई तो ये कहा जाएगा कि इस स्ट्रिंग में वापस से टेंशन रीजनरेट हो गया, बराबर टेंशन हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, आपको ये पता है कि जब ये मोमेंट था, जैसे हमने इसको रोका है, जैसे मैंने इसको रोका है, तो इस मोमेंट पे M1 के पास वेलोसिटी ज़ीरो है और M2 के पास वेलोसिटी 2g/3 है। जब ये वापस से सिचुएशन इसी सिचुएशन पे आ जा रहा है आफ्टर t इक्वल्स टू 2/3 सेकेंड पे, आफ्टर t इक्वल्स टू 2/3 सेकेंड पे मेरा V2 ब्लॉक का वेलोसिटी आपको ज़ीरो मिल रहा है और V1 का वेलोसिटी यहाँ देखो 2g/3 मिल रहा है। ठीक है, तो M1 आपका वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक? ज़ीरो से लेके 2g/3 तक गेन कर रहा है। कितने टाइम पे? t इक्वल्स टू 2/3 सेकेंड पे। सिमिलरली M2 जो है वो वेलोसिटी लूज कर रहा है 2g/3 मीटर पर सेकेंड से ज़ीरो तक, ये लूज कर रहा है इन द सेम टाइम 2/3 सेकेंड पे। तो जब ये सिचुएशन आ जा रहा है तब आप कह रहे हो कि जो टेंशन है स्ट्रिंग इज टाउट अगेन। ठीक है, स्ट्रिंग इज टाउट अगेन, ये सिचुएशन आपको एक्सप्लेन कर देता है स्ट्रिंग टाउट हो जाएगा। तो आंसर इसीलिए 2/3 सेकेंड्स है। समझे ये बात को? इसीलिए मैं सोचा कि एक वीडियो बना के आपको आंसर भेज देता हूँ। ऑल राइट।